इससे बेटर कि हम इसको पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, रिग्रेशन ये बहुत ही, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट topic, and because whenever we do any, we create a model, or even if you are writing a research paper as well, so each and every time you have to see regression weight. Okay, so let's see what is regression. So regression, basically it is used to create a model for prediction. Okay, so let us suppose uh, there is one example. See, relationship between advertising expenditure and sales. How much you have spent on your promotional activities, okay? And what was the sales? What was the effect of your promotional activity on sales? Okay. So as we know already that if we increase our promotional activities, if we put more money on that, so definitely our sales will increase. है ना? You all agree with me on this point? Yes, sir. है ना? Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So now let us suppose take the another example. Relationship between number of hours of practice and errors. So in this case, if you do more practice, more and more practice, in that case, the chances of error, it will decrease. This will also happen. Hmm? So in correlation, we get to know that there are negative and positive, both type of relations. If our value of R, correlation is represented by R, if our value of R is coming between 0 to -1, then there is a negative correlation. And if it is coming 0 to +1, then positive correlation. So in this case, see, correlation and regression and correlation, they both are linked. They both are interlinked. Okay, they have connection. Now, here we can see if we increase the cost of the advertising, our sales will increase. Means if we increase one variable, another variable will also increase. So this is positive relation. Okay, but in the second case, if number of hours, if we increase, if we do practice more and more, so the error, the chances of error, it will decrease. So here also there is a relationship, but negative relationship. If one variable increases, another one decreases. So see, so in regression, we have two type of variables, dependent variable and independent variable. If I say, let me take you just a minute. Might be in sheet one, yes. Now see, if this is the data, this is the advertisement we have done, okay, and this is sales. Okay, and this is year wise. So we have legacy data, previous year's data, 2015, and let us suppose these figures are in lakhs. Okay, if we put, if we the expenditure was 100 lakhs on advertisement, so sales was 500 lakhs. In 2016, we reduced the expenditure on advertisement to 90 lakhs, and in that case, sales was 450 lakhs. In the same way, 2017, 2018, 18 we spent 95 lakhs, so sales was 480 lakhs. But in 2019, let us suppose, in 2019, if we have, we have done the expenditure 1 lakh, sorry, 125 lakh, 1 crore 25 lakh, okay, on advertisement, then what would be the sales? Okay, so in this case, we can say that this Y, sales is represented by Y. This Y is depending on X. Y is depending on X. If we increase the advertisement, cost on advertisement, our sales will also increase. So Y is depending on X. So here Y is our dependent variable.
Because y is depending on which variable? X, which is cost of advertisement. Getting the point? Yes, sir. Okay. So now here, if we take the different scenario, in 2020, let us suppose we want sales, we want to achieve 600 lakh. This should be our sales target. So for that, how much we do or we put on advertisement? In this case, X is dependent on Y, है ना? Okay. Yes. So हमें इतना yes. तो हमें इतना पता है कि कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. बट if take this scenario, guys, I request if you are not making any query, then please be on mute, है ना? तो disturbing sound नहीं आएगी. Because the same video I will upload on Moodle as well. तो future में भी आपके काम आएगी. तो ठीक है. Okay, thank you. So इस केस में अगर हम देखें 2019 के केस में, in this case we want to predict sales if we have spent 125 lakhs on advertisement. So we want to predict something. Okay, but how we will predict? We will predict on the basis of previous year's data, legacy data, old data. Okay, so we are having this data and we will try to create a model from this data, and that model will support us, that model will tell us, that model will assist us in prediction. To do prediction, to make predictions, model will help us. So we have to create a model so that we can identify what will be the sales if I have spent 125 lakh on advertisement. So that model is regression. We are going to create that model. Okay, so now see why we are doing regression? To study the relationship between two or more variables. What is their relationship? Either they are positive relationship, negative relationship, and what is the degree of relationship? Either one variable affects another one in a much higher degree or very low. Okay, so we will develop a model to predict and to show how the variables are related. Okay, so in the first case, y is our sales. Okay, if we talk about the dependent variable, sales is again our dependent, and number of errors, they are this is also dependent. Okay, independent variables are advertisement expenditure. Okay, because sales will depend on expenditure, how much we have put on that cost, sorry, put on that promotional activity. And in the same way, number of error is our dependent variable, because number of errors, it is depending on the practice time. If practice time will be higher, then number of error will be low, or if practice time is low, then number of the chances of errors will increase. Okay, so in regression model, we can use any variable, but it is standard, in all the books and all, that we always take y as a dependent variable. Okay, so y is depending on x. So now there are simple linear regression. This term might be you have heard. Okay, simple linear regression. Now why it is simple? Simple is because there is only one dependent variable and one independent variable. There is only uh, uh, x is independent and y is dependent. So only one x and one y. That is why it is called simple. Now linear, because the relationship is approximated using a straight line. Linear means a straight line. Okay. In multiple regression, what will happen? There will be two or more independent variables. So see, this is the equation. Okay. This is the simple linear regression model, that y, which is depending on x, and this is the equation, b naught plus b1x plus e. Now, what is this b naught? B naught is the y-intercept. I'll tell you what is y-intercept. Okay, b1 is the slope. Okay, and e is our error in our prediction model. Okay, so this is our
regression model. Now we write capital B, B naught, capital B1. Okay, so we write in the case of population. Okay, but if we are working with the sample, okay, then we write small b and small b again here, b1x, b naught. Okay, and E is our error. And in the case of multiple regression, what will happen? Here, y will remain same. Here, we have one dependent variable, but now see b1x, b2x means x1, x2, x3. There are multiple two or more than two independent variables. Or we can say that y is depending on these three factors. If I say that your marks, your grades or your percentage in your second semester, तो व्हाट वर द फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स थे या फैक्टर्स थे जिन पे आपके मार्क्स या परसेंटेज डिपेंड कर रही थी? तो देयर कैन बी मल्टीपल वेरिएबल्स. नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी इज नॉट द ओनली वन. इसके अलावा और भी हो सकता है कि आपके अभी तक प्रीवियस ईयर्स के सेमेस्टर्स में कितनी परसेंटेज रही है, उसके बेसिस पे भी हम आकलन कर सकते हैं. ओके, या फिर आप स्टूडेंट जो है वो एवरेज स्टूडेंट है या अबव एवरेज एवरेज है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है. ओके, इससे पहले अगर उसने स्टैट्स, अगर अगर किसी ने एमबीए कोई कोर्स कर रहा है, उससे पहले उसने बीबीए करा है, तो उसको सब्जेक्ट ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा बहुत बीबीए में भी पढ़ चुका है. तो अगेन ये भी एक वेरिएबल है कि उन्होंने बीबीए किया है या नहीं किया है, पहले हिस्ट्री क्या है. ओके, तो देयर कैन बी मल्टीपल वेरिएबल्स. तो आपका एक स्कोर जो है, आपकी जो परसेंटेज है थर्ड सेमेस्टर की, वो डिपेंड करेगी इन सब्जेक्ट्स पे. ओके, इन वेरिएबल्स पे बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं. आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है, आप स्टूडेंट एवरेज रहे हैं कि नहीं रहे हैं, या हाई एक्सीलेंट स्टूडेंट रहे हैं, या फिर आपकी अभी तक आपने ये सब्जेक्ट्स पहले भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं. ओके, हो सकता है किसी ने बीकॉम में पहले ही ऑलरेडी ये सब सब्जेक्ट पढ़ लिया और दोबारा पढ़ रहे हो. ओके, तो देयर कैन बी मल्टीपल वेरिएबल्स. तो दीज वेरिएबल्स दे आर इंडिपेंडेंट, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, बट वाई को फर्क पड़ता है. वाई को फर्क पड़ता है इन वेरिएबल्स से. ओके, तो जैसे अगर आप देखें जो हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था, इसमें हमारा सिर्फ एक b1x था. x मींस वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हमारा ये y डिपेंड कर रहा था. बट यहाँ पे x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, और सबके साथ में b1 b2 b3 भी जुड़ गया. पहले सिर्फ b1 था. ओके, तो यहाँ पे y is our dependent variable which is dependent on multiple independent variables. ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Anyone? No, Any? sir. Okay. Okay, so now what is this b naught? Can anyone tell me what is this y-intercept? Now see, as we said that this is a linear regression model. Okay, if I, let us suppose if I open Paint, just a minute. Mhm. Okay. Okay. So this is our x-axis and this is our y-axis. Okay. So if, let us suppose there are data points. Let me use this one. Hmm. See,
Let us suppose these are our data points. Okay, so on the basis of these previous years data point, we'll try to create one line. Okay, one line, regression line. This is our regression line. So actually, what we try to achieve here, that this regression line means each and every data point, it must be closer to the regression line. हम ये चाहते हैं कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो रिग्रेशन लाइन के जितना ज़्यादा पास हो, हमारा मॉडल उतना अच्छा बनेगा. बट ये लाइन जब यहाँ वाई एक्सेस को टच कर रही है, वाई एक्सेस को जब टच कर रही है, वेयर वी हैव where x is 0 and we have some value of y. Okay, so the point where x is 0. Now see, this is our x-axis and this is my y-axis. So here at this point, x is 0. This is my b naught. This is called y-intercept. Okay. Now this b1 is, what is this b1? This is slope. अगर आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, y is equals to mx plus c, sir. Very good. So what is this m? ये m क्या है? ये m है slope, है ना? तो वो स्लोप ये है, ये इस लाइन का स्लोप, लाइन हमारी स्लोप ऐसा है, या फिर स्लोप हमारा लाइन का बहुत ज्यादा है, और या फिर लाइन का स्लोप बहुत कम है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्लोप है ना, कितनी चढ़ाई है. ओके, सड़क कितनी ऊंची है, बहुत ज्यादा ऊंची है. मसूरी जाएंगे तो आपको ऐसा स्लोप मिल सकता है, ठीक है, बैगी पॉइंट तक ऐसा मिलेगा, और विद इन दिस सिटी आपको कुछ ऐसा मिलेगा. ओके, तो ये स्लोप क्या है? तो ये आप देखिए, अगर आप हम इस लाइन को अगर ये रिग्रेशन मॉडल को देखें, तो ये बिल्कुल हमारा लाइन की इक्वेशन पर डिपेंड करता है. ठीक, m again slope, x is our variable, y is depending on x. ओके, अच्छा, मैंने ये लिखा b1x. b1 स्लोप तो है, बट यहाँ पे अगर मैं कहूँ b1 को कि b1 इज माई कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट टर्म सुनी होगी. Yes, sir. है ना? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कोफिशिएंट? एनीवन? ओके, लेट अस सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ छोटी सी, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो x स्क्वायर है, x क्या है? x इज अ वेरिएबल. ओके, हेयर अगेन वी हैव x, ये भी एक वेरिएबल है, बट इस x के साथ में एक न्यूमेरिक वैल्यू भी एसोसिएटेड है. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लिकेशन का. जब बीच में कुछ भी नहीं लिखा तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन, है ना? प्लीज जिनका भी, हाँ म्यूट, गुड. ओके, सो x की वैल्यू हमारी कुछ भी हो, x वेरिएबल है तो ये चेंज हो सकती है वैल्यू, है ना? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल. So whatever will be the value of x, it will be multiplied by 5, and that value of x square, it will increase by 5 times, क्योंकि वो 5 से मल्टीप्लाई होगी. तो मैं कह सकता हूँ कि 5 is the coefficient of x square. In the same way, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो 8 है न्यूमेरिक वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल के साथ में, ओके, so this is my variable x. For this x, 8 is the coefficient. x की जो भी वैल्यू आएगी वो फिर 8 से मल्टीप्लाई होगी. बट here this case there is no variable, कोई भी x y a b c, there is no variable, so that is why this 3 is not a coefficient. Okay, for coefficient a variable is must. तो जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू होती है हम उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट. ये क्लियर है?
Yes, है sir. ना? ओके, तो यहाँ पे मैं इस b1 को कह सकता हूँ कि ये भी एक कोफिशिएंट है, ये स्लोप, क्योंकि x के साथ में है ना? ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन और ये हमारा रिग्रेशन का मॉडल है। अच्छा, अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है, तो हमें पता लग गया कि ये हमारी लाइन है। ये बी नॉट क्या है? हमारा वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पे हमारा एक्स 0 था। और b1 क्या है? b1 इज हम our slope, x is independent variable and e is the error, वो एरर जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ओके, और इसको भी हम देखेंगे अभी ये एरर क्या है। बट नाउ सी, यहाँ पे आप देखिए कि हमारी कोशिश ये होती है कि ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो लाइन के जितने पास रहें। अगर अगर हमारा डेटा पॉइंट ऐसे हैं और जब हमने लाइन बनाई तो हर डेटा पॉइंट लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब मैं 100% सही, ये मॉडल मेरा 100% परफेक्ट है। लेट अस सपोज अगर किसी मॉडल में 80% पॉइंट्स लाइन पे आ रहे हैं और 20% लाइन पे नहीं है, ओके, तो ये मॉडल मेरा 80% प्रिडिक्शन कर सकता है। ओके, 20% नहीं कर पा रहा है, तो वो जो 20% हम नहीं कर पा रहे हैं, वो जो वेरिएंस है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या हमारा ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ओके, दैट इज दिस एरर। गेटिंग द पॉइंट? यहां तक कुछ डाउट? आउटलायर सर? नहीं, आउटलायर इज डिफरेंट थिंग। आउटलायर क्या होता है? लेट अस सपोज मैंने आपसे कहा कि, हाँ जी, हाँ, आउटलायर बता रहा हूँ मैं। आउटलायर क्या है? मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइए कंपनी में एवरेज सैलरी कितनी है। ओके, आपने मुझे कहा कि 50,000 इज द एवरेज सैलरी। ठीक, अब हो सकता है इस 50,000 ये एवरेज आया है, बट किसी की सैलरी 20,000 भी रही होगी, किसी की 40,000 भी होगी, किसी की 80,000 भी होगी। ठीक है, बट अगर मैं कहूँ एक कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय भी है जो कि 25 लाख ले रहा है, ओके, तो ये 50,000 जो है वो इनसे तो समझ में आता है कि ये एवरेज आया होगा, बट ये जो है 25 लाख, ये आउटलायर है। अगर मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूं तो सबका जो एवरेज है सैलरी का वो हो सकता है 1,25,000 पहुंच जाए। बट क्या सबकी सैलरी 1,25,000 है? नहीं, वो सिर्फ एक वेरिएबल इतना आ गया, इतना बड़ा आ गया, एक वैल्यू 25 लाख, कि इसकी वजह से बाकी सबका इफेक्ट होने लगा। 50,000 तो फिर भी पास में था 80, 40, 20,000 के। ओके, बट ये सिर्फ हमने इसको ऐड किया, इस आउटलायर को, ये 25 लाख वाला, तो इसकी वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया कि सबकी सैलरी 1,25,000 के आसपास है एवरेज। ऐसा हो सकता है? नहीं, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे डेटा सेट में। दिस इज अवर आउटलायर। गॉट द पॉइंट? यस सर। है ना? ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि एरर भी क्या है। बाकी अभी हम देखते हैं, अभी बहुत कुछ है इसमें रिग्रेशन में। ओके, सो लेट अस सपोज शीट 1। ओके, ये तो एक डेटा था, मैं अब इस डेटा की बात करता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज वन स्मॉल डेटा, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीड और ग्रेड। ठीक है, कितने घंटे पढ़ाई करी है और उसके बेसिस पे कितना डेटा हमारा आया है, मतलब कितने मार्क्स बच्चे के आए, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए। ठीक है, तो ये ऐसी है, हाइपोथेटिकल डेटा है, खुद ही बनाया हुआ है मेरा, कि 2 घंटे पढ़ाई करी तो 69 मार्क्स आए, 9 घंटे पढ़ाई करी तो 98 मार्क्स आए। किसी एक स्टूडेंट ने 5, ये देखिए ये सारे ना स्टूडेंट्स के डेटा हैं। ये हो सकता है कि ये राम का डेटा हो, ये विजय का डेटा हो, ये श्याम का हो, ये सुनीता का, अनीता, बबीता, ये सबका डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी बच्चे ने 5 आवर्स पढ़ाई करी है तो उसके 82 आए, और साथ ही साथ किसी दूसरे बच्चे ने 5 घंटे पढ़ाई करी है तो ही स्कोर्ड 77 मार्क्स। तो ये ऐसा अलग भी हो सकता है। क्लियर? सो अब यहाँ पे देखिए, अब एक टर्म यहाँ पे आएगी
जब हम इसको रिग्रेशन हम पढ़ते हैं तो एक टर्म आती है, दैट इज माय आर स्क्वायर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आर स्क्वायर? एनीवन? Covariance. Hmm? Covariance, sir. No. R square is Coefficient of coefficient of, it is coefficient of determination. Okay, this is coefficient of determination. Actually R square हमें बताता है कि हमारा जो मॉडल है उसकी प्रिडिक्शन पावर कितनी है. What is the prediction power of our model? Prediction power of model. Now let us suppose आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए. You went to the astrologer and you asked him that what are the chances of my government job? सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि आपकी नौकरी लग जाएगी गवर्नमेंट की. ज्योतिषी ने आपको कहा कि आपकी गवर्नमेंट की नौकरी लग जाएगी. आपने कहा कि सर कितने परसेंट चांस हैं कि मेरी लग जाएगी. आपने जो अपनी प्रिडिक्शन करी है मेरे लिए कि मेरी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट में, तो कितने परसेंट चांस हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके जैसे लोगों की कुंडली देखी है और 85% चांसेस, 85% जब भी मैंने प्रिडिक्शन करी है वो सही हुई है. तो 85% चांस है कि आपकी गवर्नमेंट की जॉब लग सकती है. So now what is this 85%? This 85% is R square. This is the prediction power of that astrologer. कि जब भी वो प्रिडिक्शन करते हैं तो 85% तक सही होता है. This is prediction power. Okay, तो ऐसे ही हमारा मॉडल भी हमें कितना सही बताएगा. That will be the prediction power of our model, regression model. Okay. Now 15% ऐसा भी है, रिमेनिंग 15%, 100 में से 85% तो वो एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि क्यों 85% आपकी जॉब लग सकती है. बट 15% ऐसा भी है कि वो नहीं बता पा रहे हैं. दिस इज अनएक्सप्लेन्ड. This is unexplained variance. Okay, and this 15% is my E, my error. Getting the point? Yes, sir. sir. है ना. तो यहाँ पे देखिए कि जितने डॉट्स थे मेरी लाइन पे आ रहे थे वो तो ठीक है, पर बाकी जो नहीं आ पाए लाइन पे, तो देर इज सम डिफरेंस. यहाँ देखिए इस डेटा पॉइंट से बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इससे थोड़ा कम डिफरेंस है. तो ये जो टोटल डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएंस आ रहा है, दैट इज माय ई. इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है मॉडल, और बाकी सबको मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है. तो दैट इज माय आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. और जब भी आप एनालिटिक्स करेंगे यू विल सी आर स्क्वायर. ओके, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मॉडल कितना सही है. सो इस आर स्क्वायर के लिए if I show you what is this R square, now see, can you see this pic? अरे just a minute, let me open इसको. Yes, पेंट में ओपन करता हूँ. अरे बाप, तो बहुत बड़ा आ गया. जस्ट अ मिनट. हाँ जी, ये विजिबल है सबको? Yes, ये sir. है ना? ओके Yes. ओके ओके Yes, sir. ओके. तो अब आप देखिए यहाँ पे सी,
दिस आर स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये क्या कहता है? हाउ वेल डज द रिग्रेशन लाइन फिट द डेटा। जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स थे उसको कितना एक्सप्लेन कर पा रही है हमारी रिग्रेशन की लाइन। ओके, तो आर स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला है एस एस आर अपॉन एस एस टी। नाउ व्हाट इज दिस एस एस आर? सबसे पहले इस एस एस आर इन सबको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम लिखते हैं ऐसे वाई आई, ये आपने रिग्रेशन में कभी देखा होगा कि हमने लिखा है y और उसके साथ में छोटा सा i। i मीन्स क्या है? i एक डेटा पॉइंट है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। दिस इज माय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना? जैसे कि हम एक्सेल में कह रहे थे, मैंने कहा कि किसी बच्चे ने 9 घंटे पढ़ाई करी है एंड ही स्कोर्ड 98 मार्क्स। इट मीन्स दिस 98, दिस इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज रियल डेटा। I observed this. If someone studied for only 5 hours, he or she scored 77 marks. I observed this. Okay, so this is observed. Now, okay, so this yi is observed. Yi can be 5 hour, 3 hour, 2 hour, whatever, or the the marks, the grade. Okay, this is observed. When I say y hat, it means y hat means prediction on the basis of your regression model. ओके अच्छा ठीक, मैं इसको आपको अभी डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। अभी एक ग्राफ बनाएंगे बढ़िया सा, उसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि वाई आई इज ऑब्जर्व्ड, जो ऑलरेडी विच वी हैव ऑब्जर्व्ड, सॉरी, एंड वाई हैट इज द प्रिडिक्शन, द वैल्यू द मॉडल सजेस्टेड अस कि ये वैल्यू होनी चाहिए। ओके, और वाई बार ये तो आप समझते हैं, व्हाट इज वाई बार? मीन, है ना? हेलो, Yes, sir. है ना? ये तो पढ़ा होगा Yes, हमने, sir. है ना? बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आर स्क्वायर है ये है क्या? एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टी। नाउ व्हाट इज दिस एस एस आर? एस एस आर है हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, जिस जो वो वेरिएशन जिसको कि हमारा मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ, डेटा में कुछ वेरिएशन आ रहे हैं बट वो एक्सप्लेन कर सकता है मॉडल। ओके, फुल फॉर्म इज सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाई हेड देखिए, किसी अ, किसी भी डेटा पॉइंट की आई का मतलब है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ना, कि 5 घंटे पढ़ने पे 77 मार्क्स आए फॉर एग्जांपल। तो ये 77 मार्क्स, क्योंकि ये वाला जो है ऑब्जर्व्ड है, ये देखिए हाइट लगी है, ये ऑब्जर्व, उसको अगर हम मीन से, एवरेज से माइनस कर दें तो हमें मिलेगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन। इतना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मैं अपनी एक्सेल पे देखूं तो मेरा ये जो मार्क्स आए हैं इनका मीन क्या होगा? इसका मीन होगा, मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, एवरेज और सेल की रेंज। नो सी, व्हाट इज द एवरेज? एवरेज है बच्चों के जो मार्क्स हैं वो है 77.8। ओके, तो एवरेज मेरा 77.8 है। तो जो भी मेरी वैल्यू आई है उसको जब मैं इससे माइनस करूंगा, जैसे मैं किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 81, तो 81 माइनस 77.8, ये 81 क्या है? ये प्रिडिक्शन, सॉरी ये तो ऑब्जर्व वाला है, ठीक है, बट जो मॉडल बताएगा उसकी प्रिडिक्शन 81 में से मैं माइनस करूंगा तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी, ठीक। तो दैट विल बी माय एस एस आर। एस एस टी क्या है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर में मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उससे मैं मीन को माइनस करके देख रहा हूँ कि वो कितना है, कितना डिफरेंस है। अगर कोई ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसको मैंने मीन से माइनस किया, ये जैसे ये वाला केस था, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, किसी एक बच्चे के 81 मार्क्स आए हैं और उसको मीन से मैंने माइनस किया, तो ये मेरा सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये पहले वाला क्या था कि जो मॉडल मुझे बताएगा
वाई हैट का मतलब है प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल, जो मॉडल ने बताया कि 5 घंटे पढ़ने पे इतने मार्क्स आने चाहिए, उसको मैंने जब एवरेज से माइनस किया तो वो होगा मेरा SSR। SSE क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। यहाँ पे एरर टर्म आ गई है। अब इस एरर पे देखिए क्या है, वाई आई मीन्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वाई आई मीन्स ऑब्जर्व्ड माइनस ये प्रिडिक्शन जो मॉडल ने बताई, क्योंकि ये हेड इसके ऊपर लगी है, दिस इज वाई हेड प्रिडिक्शन, the output we received from prediction of the model. So observed जो असली में आई है मार्क्स, और जो मॉडल बता रहा है, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो मेरा एरर है। ओके, दैट इज SSE। नाउ द फॉर्मूला इज SST इज इक्वल टू SSR प्लस SSE। इससे हमें दो चीज पता लग जाए, तीसरी हम निकाल लेंगे। ओके, तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला है SSR अपॉन SST। नाउ व्हाट इज दिस आर स्क्वायर, जो मैंने अभी तक हमने ये बातें करी हैं, व्हाट इज SSR SST, व्हाट इज SSE, है ना। चलो इसको एक बार रिग्रेशन का मॉडल बनाते हैं और इसे देखते हैं। तो आर वी रेडी फॉर द मॉडल, Yes, sir. है ना। ओके, नाउ सी, ये हमारा डेटा है, ये है वेरिएबल x और ये है y। तो y जो है वो डिपेंड करता है किस पे, x पे। मैं जितने घंटे पढ़ाई करूंगा उसी हिसाब से मेरे मार्क्स आएंगे। और ये मेरी वैल्यूज कौन सी हैं, दीज आर माय ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ये वैल्यूज मैंने ऑब्जर्व करी हैं। ओके, ये आई है वैल्यू। तो इसका सबसे पहले तो मैं एक स्कैटर डायग्राम बनाता हूँ, स्कैटर प्लॉट। तो फॉर दैट आई हैव टू सेलेक्ट द डेटा, आई विल गो टू इंसर्ट, and this insert we can see charts, here you will see scatter। so I've selected this scatter plot। now see the beautiful scatter plot, ये हमारे पास है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। okay, now try to understand। now see this, if someone has studied only 1 hour, he got 55 marks। so 1 hour and 55 marks, 40 60 here, 55, sorry 50 and 55। if I put my cursor it will show me values। yes, see 1 and 55, can we see 1 and 55, Yes, है sir. ना। तो x axis is our number of hours studied। okay, so that is why x is coming as 1, then comma, and y is the grade, y axis is our grade, how much marks that student scored। okay, in this case see, if someone there are two people who studied 2 hours। now see 2 hours, one got 69 marks and another one got 64 marks। so for 2 hours someone got 64 and someone got 69। in the same way there are two people, one who studied 5 hours and got 82, another one got 57। so for 5 hours again we have two data points। so these are our data points। so this is our scatter plot, each and every point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and how many dots we have, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, so each data point is here। okay, now if you see the values, the graph is coming to 120, मार्क्स तो 100 से ज्यादा आएंगे ही नहीं, तो 120 तक भी है। और स्टार्टिंग में आप देखिए नीचे की तरफ हमारा जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हैं जो आई हैं बच्चों की, हमने ऑब्जर्व करी है असली में एग्जाम में, तो उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 55, है ना। सबसे मिनिमम है 55, मैक्सिमम है 98। तो 120 तक ग्राफ दिखाना, और यहाँ 0 से 40 ये खाली है, तो इस एरिया को मैं हटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मार्क्स जो है ग्राफ में वाई एक्सिस में मुझे 40 से लेके 100 तक दिखाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर और फॉर्मेट एक्सिस पे हम जाते हैं। अरे आ गया, जस्ट मिनट, ओके। तो मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए, आई वांट 40 नॉट 0, और मैक्सिमम जो 120 हो रखी है, इस 120 की जगह मुझे चाहिए 100। नाउ सी, अब ठीक है, 40 से लेके 100 तक, है ना। सो Yes, sir. ओके, तो अगर मैं चार्ट पे क्लिक करूं, डिजाइन, मल्टीपल डिजाइन, लेट अस सपोज दिस वन, ओ माय गॉड, है ना। अभी अच्छा लग रहा है चार्ट हमारा, 40 से लेके 100 तक। तो ये मेरे डेटा पॉइंट्स आ गए हैं, ये मेरा स्कैटर प्लॉट है। अब मैं चाहता हूँ इस पे लाइन भी आ जाए, जो मेरी रिग्रेशन की लाइन है।
मैं देखना चाहता हूँ वो कितना फिट बैठ रही है इसमें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू दिस एड चार्ट एलिमेंट and go to trend line, and there is linear because straight line we call it simple linear regression. Okay, so that is why straight line. Now see, there are some points which are falling on the line, but there are some points which are far away from the line. So this is my line, but I don't know what is the equation of this line. So what I will do, I will right click on it, format trend line, and I want to display the equation as well and r squared as well. Now see, wait a minute. Let me increase the size. Now can we see? Yes, sir. है ना? So see, this is the line. Y is equals to 4.7426 x. Now what is this 4.742? This is slope, Yes, sir. है ना? Coefficient of x. तो x की जो भी वैल्यू होगी वो इससे से मल्टीप्लाई होनी चाहिए प्लस 55.036. What is this? 55.036. This is my y intercept. जब ये लाइन यहाँ आएगी और यहाँ पे y इस y एक्सिस को टच करेगी, है ना, और जहाँ पे मेरा x 0 होगा, तो वो ये है 55.036. तो मुझे पता लग गया कि 55.06 यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है विद स्लोप इतना, तो ये लाइन कहाँ जाएगी. ओके, और साथ ही साथ इन्होंने मुझे आर स्क्वायर भी दिखा दिया, मेरा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ओके, तो अभी इसके बारे में भी बात करते हैं. तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि मेरी लाइन की इक्वेशन ये है ना. अब अगर देखिए, मैं ये पता करना चाहता हूँ, लेट अस सपोज मैं पता करना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे देखिए 4R है, किसी ने नहीं करी, 4R वाला कोई नहीं. अगर किसी बच्चे ने 4 घंटे पढ़ाई करी है, ओके, तो फिर उसके कितने मार्क्स आने चाहिए. ओके, अब ये मेरा मॉडल बताएगा. दिस इज माय मॉडल, ये जो लाइन है, तो यहाँ पे मैं करके देख लेता हूँ. इक्वल्स टू 4.74 4.74. ये सबको दिख रहा है ना, या इसको फॉन्ट थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ. जस्ट अ मिनट. Okay, bold as well. So now equals to now see 4.74 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, है ना. तो मैं सिंपल इंटू ही लिख देता हूँ उसको, इंटू एक्स. एक्स मेरा क्या है, अब मुझे पता करना है कि अगर एक्स मेरा 4 आवर्स होता है, मैंने 4 लिख दिया, अगर 4 आवर्स कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वाई कितना आएगा, उसका ग्रेड कितना आना चाहिए. ये मॉडल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ओके, और एक काम करता हूँ, मैं इनको बॉडमास का रूल फॉलो करते हैं, मैं इनको ब्रैकेट में ले लेता हूँ. ओके, आफ्टर दैट वी हैव प्लस, मैं लिखता हूँ प्लस, क्या वैल्यू है, y इंटरसेप्ट 55.036. 55.036. तो आप देखिए ये लाइन, ये जो मॉडल है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट x की जगह पे मैंने 4 लिख दिया है, क्योंकि x यहाँ पे अगर 4 घंटे कोई पढ़ाई करेगा तो मुझे बताइए ये मॉडल कि कितने मार्क्स आने चाहिए. ये समझ में आया सबको, Yes, sir. है ना. अब मैं इसमें एंटर मार देता हूँ. यस, तो मैं एंटर किया तो देखिए 74 दिखाया इसमें. यानी अगर कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ाई करेगा तो उसके मार्क्स कितने आना चाहिए, 74. ठीक. अच्छा, अब इसी में एक चीज और देखिए, किसी डेटा को लेते हैं, जैसे ये 3 आवर्स का केस है. किसी बच्चे ने 3 घंटे पढ़ाई करी है, स्टडीड फॉर 3 आवर एंड स्कोर्ड 71 मार्क्स. दिस इज माय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बिकॉज ऑलरेडी इतने ही मार्क्स आए बच्चे के, 71 हमारे पास रिजल्ट है, मार्कशीट है. दिस इज ऑब्जर्व्ड. ओके, बट व्हाट दिस मॉडल सेज, अगर इसी मॉडल में मैं यहाँ पे 4 की जगह 3 कर दूं, 3 आवर्स, एंटर, तो ये मुझे दिखा रहा है 69.26. इट मीन्स what model is saying that if someone will study for 3 hours, 3 hours, so
he will score around 69.26 mark. 69.26 means somewhere over here, है ना? और जो एक्चुअल मार्क्स हैं, जो ऑब्जर्व्ड हैं, वो क्या है 71, ये जो ब्लू डॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे। और असली में कितना आया 70, ये 70 है, 70 से ठीक नीचे 69। ठीक, तो मॉडल मुझे जो बता रहा है, ये मॉडल ने प्रिडिक्शन करके मुझे बताया है कि अगर कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ाई करेगा तो उसके इतने मार्क्स आएंगे। बट असली में ऑब्जर्व कितनी थी 71। गेटिंग द पॉइंट? सो वाई हैट जो है, जो हमने यहाँ पे मैं लिख रहा था वाई हैट, व्हाट इज दैट वाई हैट? अरे कहाँ गया? ओके हियर। तो ये जो वाई हैट है ये क्या है? ये है 69.9 और वट जो भी मॉडल ने बताया मुझे प्रिडिक्शन करके। और वाई आई क्या था? ऑब्जर्व 71। क्लियर? अब देखते हैं ये SSR, SST और SSE है क्या। सो मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा now yes, now I will copy this one। मैं इसको चलिए यहीं पे करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले मैं लाइन यहाँ पे खींचता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक तो मीन आ रहा है, वाई हैट और वाई आई। ठीक है। सो मीन क्या निकला था हमारा 77.8। मीन इज 77.8। बच्चों के एवरेज मार्क्स जो थे वो 77.8 हैं। सो लेट अस सपोज आई टेक दिस कलर 77.8। 77.8 will fall somewhere over here, है ना? यहीं पे पड़ेगा कहीं पे। ओके ठीक है। ये हमारा मीन है। मैं इसमें लिख भी देता हूँ, दिस इज माय मीन। सिस्टम इज गेटिंग स्लो। ओके सो दिस इज माय मीन। ओके, और या फिर मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूँ तो दिस इज माय वाई बार। ठीक है जी, ये तो आ गया हमारा। अच्छा, ये ब्लू लाइन जो आ रही है ये वाली, ये कौन सी लाइन है? कैन एनीवन टेल मी? Linear regression. हाँ, रिग्रेशन की तो लाइन है। ओके, ये वाई हेड देखा आपने प्रिडिक्शन, है ना? ये ब्लू वाली जो है ये वाई हेड वाली है मेरी, क्योंकि प्रिडिक्शन यही लाइन तो मुझे प्रिडिक्ट करके बता रही है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि किसी बच्चे ने 6.5 घंटे पढ़ाई करी है, तो ये देखिए नीचे यहाँ 6 है, 6.5, तो उसके कितने मार्क्स आने चाहिए? तो 6 और 7 के बीच में 6.5, और उसके मार्क्स आने चाहिए ये लाइन के अकॉर्डिंग 85 के अराउंड, है ना? गाइस आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अगर 6.5 किसी ने पढ़ाई करी है तो मैं देखूंगा लाइन का पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो 6.5 के अकॉर्डिंग हेयर, तो अराउंड 85 मार्क्स उस स्टूडेंट को मिलेंगे। अगर किसी ने 8 घंटे पढ़ाई करी है तो उसको अराउंड 93 94 मार्क्स मिलेंगे, 92 93। तो ये प्रिडिक्शन वाली लाइन है वाई वाई वाली मेरी। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ साथ ही साथ कि ये जो मेरी ब्लू वाली लाइन है ये है मेरी रिग्रेशन की लाइन, है ना? इसका कलर भी हम यही कर लेते हैं।
regression line or y hat, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा मीन क्या कह रहा है, मीन था मेरा 77.8। अच्छा, कुछ केस में ना ऐसा भी होता है, लेट अस सपोज एक नया एग्जांपल हम लेते हैं, किसी बच्चे ने सिर्फ 7 घंटे पढ़ाई करी। देयर इज वन स्टूडेंट who spent 7 hours on his her studies and he scored, let us suppose he scored 100 marks. Quite possible, कुछ बच्चे ऐसे ब्रिलियंट होते हैं कि वो कुछ देर में ही सब कुछ कर लेते हैं। तो ये है वो पॉइंट 100, ठीक है, ढंग से बनाऊं उसको। 7 घंटे, ये देखिए नीचे 7 hours और यहाँ पे ये रहा, दिस इज द पॉइंट 100। तो यहाँ पे उस बच्चे ने 7 hours पढ़ाई करी और उसको 100 मार्क्स मिले। अब इस केस में अगर हम देखें, नाउ सी, यहाँ पे देखिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर पे मैंने क्या किया, ये है क्या SST, SST इज yi, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड किया, yi मींस ऑब्जर्व्ड। अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उस बच्चे ने 100 मार्क्स मिले हैं उसे, ठीक। और ये जो मीन है, y बार इज मीन, मीन से अगर हम डिफरेंस देखें और उस ऑब्जर्व वैल्यू का, तो वो मेरा टोटल सम ऑफ स्क्वायर है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, नाउ सी, ये मेरी मीन की लाइन है और बच्चे के मार्क्स ये हैं, यानी कि दिस वन, दिस एरिया, अरे फ्रॉम 100 टू मीन, this much area, what is this? This is my SST, total sum of square, है ना। now see SST is जब मैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मीन एवरेज इनके बीच का डिफरेंस देख रहा हूं, ओके। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरी 100 है यहाँ और मीन की लाइन ये वाली है, तो दिस इज द डिफरेंस, so this will be my SST, this is my SST, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए SSR, now what is this SSR? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, यानी कि मीन और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारा मॉडल बता रहा है, y hat मींस ऑब्जर्व्ड प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन मॉडल। तो y hat के अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला में इस लाइन में y इज इक्वल टू 4.74 यहाँ x में अगर इसको लिखूं, तो फिर वो 7 घंटे पढ़ाई करने पे बच्चे के कितने मार्क्स आने चाहिए ये मॉडल मुझे बता देगा, ठीक है। तो वो और मीन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो है मेरा SSR, यानी कि मेरी मीन की लाइन तो येलो वाली है और 7 घंटे किसी बच्चे ने पढ़ाई करी है तो उसके मार्क्स यहाँ आने चाहिए थे। मैं इसको रेड कलर से रिपीट करता हूँ, देखिए अगर किसी बच्चे ने 7 घंटे पढ़ाई करी है तो उसके मार्क्स ये आने चाहिए थे, क्योंकि मॉडल की लाइन तो ये बता रही है, यानी कि 88 के आसपास मार्क्स आने चाहिए थे। और मीन कितना है, मीन है मेरा ये 77.8, यानी कि अगर मैं यहाँ से लेके 77 यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो गैप है मेरा, ये जो गैप है, ये मेरा गैप क्या है, दिस इज माय SSR, है ना। दिस गैप विल बी माय SSR, गेटिंग द पॉइंट, Yes. है ना, क्योंकि मीन और जो प्रिडिक्शन मॉडल ने बताई है वैल्यू, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है मुझे, तो ये SSR है। अच्छा, अब तीसरा देखिए, SSE, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। यहाँ पे देखिए, एक तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू
और रिग्रेशन मॉडल ने जो बताई है वो वैल्यू, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। रिग्रेशन मॉडल ने मुझे क्या बताया, ये y हैट वाला, और ऑब्जर्व्ड क्या रही, उनके बीच का वैल्यू है एरर वाला। यानी कि मीन्स इसने तो मुझे ये बताया y हैट, इसको अब मैं लेता हूँ किसी और कलर से, ब्लू ग्रीन ले लेते हैं चलो। यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके, ये तो रिग्रेशन मॉडल ने बताया है ये 88 के मार्क्स आसपास मार्क्स आएंगे अगर कोई बच्चा 7 घंटे पढ़ाई करता है, बट ऑब्जर्व्ड हमने किया कि उसके मार्क्स आए 100। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि यहाँ से लेके 100 से लेके और यहाँ तक, दिस इज माय, व्हाट इज दिस, दिस इज माय SSE, SSE एरर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। यानी कि ये मॉडल जो है वो ये सब इतना हमारे पार्ट को, इस लाइन को, इस डिफरेंस को इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, so this is my error, this is unexplained variance। इतना वेरिएंस क्यों आया, ये मॉडल के अकॉर्डिंग तो इतना होना मार्क्स होनी चाहिए थी, रेड डॉट जो है 88 के आसपास, बट असली में ऑब्जर्व जो वैल्यू आई वो आई इतनी। तो उनके बीच में ये गैप क्यों आया, ये जो गैप है इतना, जिसको कि मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, दिस इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस एंड दैट इज माय एरर, SSE। So now if you see this SSR, this red line plus this green line, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, so I will get this SST, getting the point? Yes, sir. Yes, sir. है ना? So अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे ये मिलेगा, और according to my formula as well, SST is equals to SSR plus SSE, sum of square due to regression and sum of square due to error। इन दोनों को कर दूंगा तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, दिस इज माय SST। ओके, ये तो मैंने खैर हाइपोथेटिकल लिया था 100। ओके, और बट आपको ये समझाने के लिए कि SSR, SSC और SST है क्या। तो इन वैल्यूज से हमारे क्या निकलती है, जब हमें ये वैल्यू पता लग जाए तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज अवर R स्क्वायर। ओके, तो R स्क्वायर में SSR डिवाइडेड बाय SST में कर दूंगा तो मुझे R स्क्वायर मिल जाएगा। एंड हेयर इन अवर केस वी कैन सी दैट अवर R स्क्वायर इज 0. Just a minute, it is our 0.9505। Now what it means, if I convert it into percentage, अभी ये इसमें है, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करूं तो कितना आया, 95.05%। दिस इज अवर R स्क्वायर राइट नाउ। ये जो मेरा मॉडल है ये वाला, इस मॉडल ने मुझे बताया कि मेरा R स्क्वायर ये है, और इट मींस मेरी इतनी प्रिडिक्शन पावर है कि अगर मैं कुछ प्रिडिक्ट करता हूं तो 95% चांस है कि मेरी प्रिडिक्शन 95% करेक्ट हो। ओके, है ना? सो सी, अगर आपका R स्क्वायर कहीं पे, इफ योर R स्क्वायर इट कम्स अराउंड, लेट अस सपोज ये आपका 0.8 आता है या इससे ऊपर आता है, 0.8 जो या इससे ऊपर है ना, तो इट मीन्स अगर आप 80% डेटा पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने रिग्रेशन मॉडल से, तो दिस इज अ गुड मॉडल, देन दिस इज अ गुड मॉडल। अगर आप अपने मॉडल से 80% आपकी प्रिडिक्शन पावर है, R स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करने के लिए जो कोफिशिएंट है वो R स्क्वायर है, ये मुझे प्रिडिक्शन पावर बता रहा है कि अगर मैं अपने ये जितने डेटा पॉइंट्स हैं इनमें से 80% डेटा पॉइंट्स को डिफाइन कर सकता हूं अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके, तो दिस इज माय 80% इज माय प्रिडिक्शन पावर, तो मेरा मॉडल सही है। हाँ, बट अगर कभी आपकी R स्क्वायर 60% आए, 50% आए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में ये मॉडल आपका फिट नहीं है, ये आपका अच्छा मॉडल नहीं है। तो आपको उस केस में कुछ नए वेरिएबल्स जोड़ने होंगे, जैसे नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड को हटा दें, आप पिछले 5 साल
में बच्चे के क्या मार्क्स आए हैं, परसेंटेज रही है ना, डिफरेंट 5 क्लासेस में लास्ट ईयर की, तो आप उनको लिख सकते हैं। तो उनके बेसिस पे देखिए ग्रेड में कि क्या इसका सही में इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपका आर स्कोर अच्छा आ रहा है, 80 से ऊपर आ रहा है। अगर 80 से ऊपर आ रहा है तो वो मॉडल ठीक है, नहीं तो आप दूसरे और वेरिएबल्स भी इसमें पुट कर सकते हैं। तो हमें बार बार ऐसे करके अलग अलग वेरिएबल्स लगाने होते हैं, और हम वेरिएबल्स को लगाते हैं और तब देखते हैं कि वेदर अवर मॉडल इज फिट और नॉट, हाउ मच आर स्क्वायर वी आर गेटिंग, हाउ मच प्रिडिक्शन पावर वी हैव, उस मॉडल के अकॉर्डिंग हम कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फिर अभी जैसे मैंने आपको कहा, हमने जो सॉरी इसी केस में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने ये सेल्स आपने 1 लाख सॉरी 125 लाख रुपीज आपने प्रमोशन पे लगाए हैं, तो आपकी सेल्स इस बार कितनी होगी, तो आप कैसे पता करेंगे? रिग्रेशन मॉडल से। ये पुराने ईयर का डेटा काम आएगा। इस डेटा पे आप रिग्रेशन लगाएंगे, रिग्रेशन का मॉडल आपको लाइन देगा, और फिर उसमें आप आर स्क्वायर देखेंगे कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्या वो 0.8 यानी कि 80% से ऊपर को 80% से ऊपर है, तो वो मॉडल ठीक है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाँ थोड़ा आसपास रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे केस में था, मैंने आपको कहा था कि अगर किसी बच्चे ने 3 घंटे पढ़ाई करी है, देखिए 3 घंटे पढ़ाई करी है तो उसके 71 मार्क्स आए हैं। 3 घंटे पढ़ाई करी है तो 71 मार्क्स आए हैं। वो 71 ये ब्लू डॉट है, बट वो लाइन में नहीं है, बट लाइन के अकॉर्डिंग वो कितना आ रहा था, 69। ओके, बट फिर भी आसपास है। और वैसे भी ये मॉडल मेरा 95% एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा 100% नहीं कर रहा है। तो 95% एक्सप्लेन कर रहा है, मीन्स कि 69 आएंगे और 71 है असली में ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, तो फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इन दिस वे आपका मॉडल आपको बताता है कि मॉडल एक तो कितना अच्छा है आर स्क्वायर, साथ ही साथ कितना आपने एडवर्टाइजमेंट किया है तो कितनी आपकी सेल्स हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट, Yes, sir. है ना? ओके, सो हाँ जी। अच्छा, साथ ही साथ इसमें एक चीज और देखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना, आप प्रिडिक्शन उतने का ही कर सकते हैं जो आपका ये डेटा सेट आपने दिया है, जिसके बेसिस पे आपने मॉडल बनाया है, उसमें मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जैसे कि मिनिमम वैल्यू हो 1 आर, मैक्सिमम है 9 आर, तो 1 और 9 आर के बीच का आप कुछ भी मॉडल के थ्रू पता लगाना चाहें, आप पता लगा सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने 2.5 आवर स्टडी करी है तो उसके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलूं इस रेंज के बाहर 1 से लेके 9, इस रेंज के बाहर का अगर आप प्रिडिक्ट करेंगे, तो वो रिग्रेशन मॉडल अगर आपको आउटपुट तो दे देगा कुछ भी, बट वो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ उसी पर रिलाई करेंगे जो आपके डेटा की रेंज है। जैसे 1 और 9 इनके बीच में अगर मैं किसी कहूँ कि 12 घंटे किसी बच्चे ने पढ़ाई करी तो उसके मार्क्स कितने होंगे, ओके, तो वो जो मॉडल मुझे मार्क्स बताएगा, वो मार्क्स पे मैं डिपेंड नहीं करूंगा, वो उस पर मैं रिलाई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो डेटा की रेंज के बाहर का था। ऐसे ही मैं 0.5 अगर किसी ने सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई करी है तो उसमें भी मुझे डेटा मिलेगा, बट वो रिलायबल डेटा नहीं है, वो रिलायबल आउटपुट नहीं है। प्रिडिक्शन जो होगी रिग्रेशन में, वो सिर्फ जो रेंज है डेटा की 1 to 9, इसी के बीच में मुझे ये मॉडल आंसर देगा। गेटिंग द पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है yes, sir. है ना? ओके, अच्छा, साथ ही साथ इसमें अगर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, अगर मैंने इसमें लेट अस सपोज अगर इसमें मैंने एनालिटिक्स डाल रखी होगी, just a minute, यस, डेटा एनालिसिस पे जाता हूँ, मैं आपको पूरा रिजल्ट ही दिखा देता हूँ। मैं इसमें जा रहा हूँ, आ गया मेरा रिग्रेशन, ओके, एंड वाई रेंज, वाई मीन्स दिस वन, जो डिपेंड करेगी, इनपुट रेंज एक्स, यानी कि दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या जो मैंने ये डेटा दिया है इनमें लेबल्स भी हैं? यस, जो मैंने रेंज सेलेक्ट करी है उनमें ग्रेड, वाई, आर्थ स्टडी ये भी आ रखा है। कॉन्फिडेंस लेवल 95%, 95%, ये तो आपको पता होगा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये आप लोगों को पता है? हेलो? Not, नहीं, ओके, कोई बात नहीं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। अभी हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, तो
रेसिडुअल्स वगैरह नहीं, ये सब तो नहीं चाहिए, बट आउटपुट रेंज, आउटपुट रेंज इसी में दिखानी है मुझे। तो ये रख देता हूँ यहाँ पे, ये रहेगी मेरी आउटपुट रेंज, यहाँ से होगी। अरे आउटपुट रेंज मेरी यहाँ से आ जाए, सॉरी, आउटपुट रेंज यहाँ से आ जाए, और ये वाला हट गया, गलत हो गया। तो इसको मुझे जस्ट मिनट, ठीक है, ये वाई रेंज है, ये एक्स रेंज है, और ये आउटपुट रेंज है, और मैं इसमें करता हूँ ओके। नाउ सी, दिस इज द आउटपुट। ये पूरा रिग्रेशन का आउटपुट आ गया है। आपको दिख रहा है रिजल्ट सबको? यस सर। है ना? अब देखिए आप, ये शानदार डेटा हमारे पास आया है। इंटरसेप्ट कितना है? कोफिशिएंट देखिए इंटरसेप्ट का 55.035 है ना? और इस ग्राफ को भी मैं आपके सामने ही ले आता हूं ताकि आपको यहाँ पे रख देते हैं ग्राफ को। नाउ सी, अच्छा और नीचे, नाउ सी, इंटरसेप्ट कोफिशिएंट 55.035, यहाँ देखिए 55.036 आ रहा है। एक्चुअली ये उसमें ले लिया उसने, राउंड है ना, ये डेसिमल पॉइंट कम कर दिए, तो 55.03 इतना ही है ना? कोफिशिएंट देखिए आर स्टडीज यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 4.74। ये देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 4.74 है ना? स्टैंडर्ड एरर भी हमें दिखा रहा है। ओके, पी वैल्यू ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे हाइपोथेसिस में। तो अभी आप यहाँ पे देखिए दो चीजें दिखा रहा है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर। क्या हम देख पा रहे हैं दोनों को? आर स्क्वायर एंड यस सर। यस। sir. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। ये मैं आपको बिल्कुल एक डेटा साइंस में एक बहुत ये आपको मैं क्या बताऊं, ये बहुत गूढ़ चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रहस्य की बात, कि अगर आपका independent variable, if we have only one independent variable, then in that case we will see r square. Okay, but if we have multiple independent variables, okay, as we discussed in the case of multiple regression, when there are multiple independent variables, in that case we will see adjusted r square. Clear? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब ऐसा क्यों? आप जब भी नोटिस करेंगे आप देखेंगे एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से थोड़ी सी कम ही आएगी हमेशा। ये इस केस में भी देखिए 0.94 है और यहाँ पे 0.95 है ना? सिंगल वेरिएबल के टाइम पे आप आर स्क्वायर देख सकते हैं, मल्टीपल होंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर ही देखेंगे। क्यों देखेंगे? अब ये सोचिए, लेट अस सपोज मल्टीपल वेरिएबल्स में जैसे कि ये था मेरा डेटा, कहाँ गया? हाँ है, ये मेरा डेटा था। तो y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे हो सकता है y किसी और चीज पे भी डिपेंड करे, कि मैं ले लेता हूं एवरेज ऑफ 5 years मार्क्स। किसी बच्चे के पिछले 5 सालों में कितने मार्क्स आए हैं, और ठीक है, तो ये भी यहाँ पे जो मार्क्स आएंगे ये भी एक वेरिएबल हो गया, इसका नाम लेटर सपोज मैंने दे दिया, ये हो गया मेरा x1, सॉरी x2, ठीक है, और ये वाला जो था ये पहले था मेरा x1। ठीक, ऐसे ही कुछ और भी वेरिएबल मैंने ले लिया कि वो बच्चा
बच्चे का स्टेटस क्या है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो एवरेज स्टूडेंट है या क्या है, तो उसके इसमें मैं ये हो जाएगा मेरा x3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये जो y है, दिस y इज डिपेंडिंग ऑन x1 x2 एंड x3, है ना। तो y अब इन मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा, ऐसा ही तो होगा। हेलो, Yes, sir. है ना। तो उस केस में अब आप सोचिए कि मैंने आपको कहा कि एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, और उस बॉक्स को आपको कॉलेज की बिल्डिंग से कॉलेज के गेट तक ले जाना है। सिर्फ एक आदमी है, बिना जमीन पे रखे उसको वहां तक ले जाना है। तो चांसेस कितने होंगे उसको ले जाने के, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो आदमी बिना उसे एक बार भी नीचे रखे उस बॉक्स को, he can carry that box from that building to the gate. So probability will be low because there is only one person. Box is heavy, isn't it? Yes, sir. है ना? Now, if another person comes to help, now there are two people. Now the probability will become little bit higher कि बॉक्स वहां तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही अब Sir. ऐसे ही अब तीसरा आदमी भी आ गया। नाउ थर्ड पर्सन, आपका कोई तीसरा फ्रेंड भी आ गया। उन्होंने कहा कि भैया मैं भी लग जाता हूँ, तो अब 3 लोग हो गए, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि अब तो पहुंच ही जाएगा। ऐसे करके 5 लोग या 10 लोग और आ गए। अब तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स वहां तक पहुंच ही जाएगा, गेट तक। लेट अस सपोज ऐसे करते करते 20 लोग हो गए, तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत हाई है कि बॉक्स पहुंच ही जाएगा। बट उन 20 लोगों में ऐसे भी लोग होंगे जो उस बॉक्स को सिर्फ टच कर रहे होंगे, उन्होंने फिंगर लगा रखी होगी कि हमने भी वेट शेयर कर रखा है कुछ बॉक्स का, है ना। तो क्या उन लोगों ने, वो जो लोग हैं जिन्होंने अपने फिंगर टच कर रखी है उस बॉक्स में, क्या वो सिग्निफिकेंट योगदान दे रहे हैं उस बॉक्स के को वहां तक ले जाने के लिए? No, sir. नहीं दे रहे हैं। हाँ, बट वो भी हैं ग्रुप में ऐसे वेरिएबल्स जो कि मॉडल में तो हैं, but there is no significant effect of those variables. Adjusted R square will remove these variables और उतने ही वेरिएबल्स को रख के बढ़िया वैल्यू देगा जो असली में वेट उठा रहे हैं और हमारी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग जिनका सिग्निफिकेंस है ही नहीं, उनका जो एफर्ट है वो सिग्निफिकेंट ही नहीं है, दे आर जस्ट टचिंग द बॉक्स, तो उन लोगों को हटा दिया जाएगा और इसीलिए एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा थोड़ा सा कम आएगा। तो इसीलिए जब भी मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो आप एडजस्टेड आर स्क्वायर देखेंगे। हो सकता है इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इन दिस मॉडल द स्टेटस ऑफ स्टूडेंट, कि वो एवरेज स्टूडेंट है, बहुत एक्सीलेंट है, ये काम ना कर रहा हो। क्योंकि हो सकता है जो अभी तक कुछ समय तक मूर्ख रहा हो और आज वो बहुत मेहनत करके ब्रिलियंट हो गया, तो हो सकता है ये वेरिएबल काम ना कर रहा हो। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर ये दिस जो इनसिग्निफिकेंट इसका वैल्यू इसको हटा देगा, इसको कंसिडर नहीं करेगा, इन दोनों को ही कंसिडर करेगा। और आप मॉडल में भी देखेंगे, जब हम आगे मॉडल बनाएंगे और हम हाइपोथेसिस वगैरह, आप देखेंगे कि हमने एक को रखा तो वैल्यू कुछ और आ रही है, इसको हटा दिया तो वैल्यू कुछ और आ रही है। तो हम देखेंगे कि इसका भी क्या इम्पैक्ट इन पे पड़ रहा है। तो दैट इज वाई जब भी मल्टीपल मॉडल होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इन दैट केस वी विल ऑलवेज गो फॉर एडजस्टेड आर स्क्वायर।